everybody to Success Coaching Classes. Here we will discuss the biology answer key of Samarth 2025 Success Scholarship Exam. I am Amit Sindhkar and I teach here biology, board as well as NEET. The paper had two sets, set A and set B. I will be discussing the answer key for set A, questions 26 to 32, and set B, questions 6 to 12. So friends, let's start. The first question, that is a question number 26 for one set and 6 for the another set. Let's discuss. Which of the following statements about the autotrophs is incorrect? So when such questions are asked, we have to understand that what the examiner wants to know, that which of the statement is incorrect. So statement number 1, they store carbohydrates in form of starch. The statement is right. B, they constitute the first trophic levels of the food chain. Of course, autotrophs are producers and they constitute the first trophic level. The third statement, C, they convert carbon dioxide and water into carbohydrates in absence of sunlight. How it is possible? Autotrophs do photosynthesis by using 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecules of water in presence of sunlight, and that's why the statement C is wrong. The statement D, they synthesize carbohydrates from CO2 and water in presence of sunlight and chlorophyll. That is the right statement. So our answer is C. And we agree that autotrophs synthesize in presence of sunlight and chlorophyll. They cannot perform this process in absence of it, while other statements were true. So let's go to the next question. I hope you understand that. The next question of one set, that is 27 question of set A, while set B it is the 7th question. Which of this is not the part of a small intestine? Friends, you know that the intestine are of two kinds, small intestine and large intestine, and the difference lies because of their diameter. The small intestine has a smaller diameter while the larger intestine has a larger diameter. Whereas the small intestine is longer in length and the larger intestine is smaller in length. When we look at a small intestine, in humans it is divided into 3 parts, duodenum, jejunum and ileum, while rectum forms the part of large intestine. So friends, the answer should be D, that is rectum. It is not the part of the small intestine. Duodenum is the first section where chemical digestion occurs. Jejunum is a middle section where nutrient absorption occurs, while ileum is the last section where remaining nutrients and bile salts are absorbed. While the rectum is a part of a large intestine, not a small intestine, stores the fecal matter. So we say that answer is D. Let's go for the next question. The next question for set A 28 number, while the set B it is 8. The question says, during contractions of heart, what prevents the backward flow of blood? The backward flow of blood is, friends, always prevented by the valves of the heart. The valves make sure that bidirectional flow of blood is not there. If there is a bidirectional flow of blood, the choke up of the blood flow would occur, and hence the valves. You must be knowing there are many types of valves. There are 2 AV valves, the right AV valve and the left AV valve. The left AV valve is called the bicuspids, while the right AV valve is called as a tricuspid valves. There are other valves also in the aortic arch. So our answer is C. Thin walls of atria cannot prevent. Thick muscular walls of ventricles are for pumping the blood, but to prevent the backward flow of blood, the valves are present. So functions of valves is to ensure unidirectional flow of blood.
and we know that between two auricles and ventricles, okay, these valves are present. Between the right auricle and the right ventricle we have tricuspid valve, while between the the left auricle and the left ventricle the bicuspid valve, also known as the mitral valve, is present. Similarly, from the pulmonary trunk there is a pulmonary valve, and in the aorta we have the aortic valves. All the valves have their function and to ensure a unidirectional flow of blood and prevent the black flow. The next question we see is the trachea. Okay, question number for set A 29 and set B, that is 9. The trachea do not collapse when there is no much air. Because why it occurs? So who is responsible? If there is a very less air inside the trachea, it creates a negative pressure. In a normal circumstances, any physical system would collapse, but the trachea doesn't, because it possesses cartilaginous rings. So our answer is B. They are having no muscles. Remember, the lungs and the tracheal system, their muscles are absent. Valves are only present in the hearts, and that is why our answer is they have cartilaginous rings. The larynx are supported, okay, doesn't come over here. There is no correlation between the question and that option. So our answer is B. And we say we have 12 C-shaped cartilaginous rings. They are why C-shaped? Because on the dorsal side we have the vertebral column, and that is why they are not completely circled but only C-shaped, so that we can bend our neck and also the trachea doesn't collapse. Okay, so let's go for the next one. The question number 30 for set A and question number 10 for set B. Which one of the following, okay, blood vessels carry only and only deoxygenated blood? And our answer is the pulmonary artery. Why? What is the function of an artery? What is an artery? Any blood vessel which carries blood from heart to various organs is called an artery, while any blood vessel which originates in the organs and goes towards the heart is called vein. There in that definition we never mention anything about deoxygenated or oxygenated blood. So when I say a pulmonary artery is the artery which originates from the left ventricle, or right, we said originates from the right ventricle, and the right ventricle receives blood from the right auricle, and right auricle receives all the deoxygenated blood from superior and inferior vena cava, from all parts of the body, and thereby pulmonary artery only and only carries deoxygenated blood. The artery and vein, okay, we shouldn't say that they are oxygenated or dear. It all depends upon what they carry. So pulmonary vein carries oxygenated blood, while pulmonary artery carries deoxygenated blood. Capillaries are the connection between the arteries and the veins, and that's why they contain both oxygenated and deoxygenated blood. Aorta always and always originating from the left ventricle, okay, carries oxygenated blood towards the body. So our answer is pulmonary artery. Friends, let's go for the next question. Question number 31 for set A and set B, that is 11. When air is blown from the mouth in a test tube, it containing lime water, then lime water will turn milky due to presence of what? Friends, when we are blowing air from the mouth has air which is CO2 rich. So what happens? CO2 combines with the lime water. Lime water is what? CaOH twice, and this union creates CaCO3, calcium carbonate, and that's why we say that it is due to the presence of CO2 that it has turned milky. So our answer is D, carbon dioxide. What's our explanation? We are saying when you blow air into the lime water, the air is CO2 rich. It reacts with the calcium hydroxide, that is a lime water,
and it forms calcium carbonate, which gets precipitated in a form of a milky precipitates. If we look in a reaction form, it is calcium hydroxide, CaOH twice. When combines with CO2, it forms calcium carbonate, and this forms as a precipitate. So this is precipitating out, and that is how we say this answer is carbon dioxide. We can also see in a flow chart form, when a person blows air from the test tube with lime water, the CO2 from the breath combines with the lime water and forms calcium carbonate, the milky precipitates. Let's go to our last question on the biology section, that is question number 32 of set A, while set 12 of set B. In which parts of the following groups of animals heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? Which are these? So we should know that in vertebrates, I am talking in vertebrates, that is chordates, we have different type of circulatory system, single circuit and double circuit. We have two chambered hearts in Pisces, three chambered hearts in amphibians, and reptiles up to crocodiles have also three chamber heart. Crocodile, birds and mammals have four chambered heart. What are chambers? The upper chambers are called auricles and the lower chambers are called ventricles. In case of Pisces, they have only two chambers, auricles, that is single auricle, no right or left, only a single auricle and a ventricle. So all the deoxygenated blood from all parts of the body goes into the auricles, and from auricles it enters into the ventricles, and from ventricles it will go to the gills for oxygenation. So the entire heart chambers, auricle and ventricle, carries only deoxygenated blood. Whereas in amphibians or reptiles, they have two auricles, right and left auricle, and a common ventricle. So the deoxygenated blood from all parts of body is returned to the right auricle, while the oxygenated blood is returned to the left auricle. Both get mixed in the single ventricle. So we cannot say that they are getting only and only deoxygenated blood. They get mixed blood, oxygenated as well as deoxygenated, and hence our answer is A. Why we say A? Because Pisces have two chambered heart and only deoxygenated blood. The question was that which of this group does not pump oxygenated blood and does not. So no oxygenated blood, partial oxygenated blood is also not there, and that answer should be Pisces only. You can look at the figure and you can see yourself that the fishes, the ventricles and the atriums, they are getting blood which is completely what is mixed or oxygenated or deoxygenated, only and only deoxygenated. While amphibians, you will see, the reptiles you will see up to crocodiles, so without except the crocodiles, all of them have three chambered heart and they will be mixing blood occurs. So one part is getting oxygenated, other auricle part is getting deoxygenated, while both the bloods get mixed in a single ventricle. So thus our answer is Pisces only. With this we complete this answer key for biology. Thank you. हेलो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 33 is of set A, 13 is of set B. Now question is the minimum distance between the object and image formed by concave mirror. See the minimum distance. So we know that minimum distance between object and image. So you know that if you keep object at center of curvature, that is at 2f, center of curvature is at 2f. See, radius of curvature is equal to double of focal length for a mirror, concave mirror, convex mirror. So if you keep object at center of curvature, then when object is kept at C,
image is also at C. Object at C, image is also at C. Right? So, what is the distance between object and image? As both are at same location, distance between them is 0. Clear? Distance between them is 0. So, here the minimum distance between object and image formed by concave mirror can be 0. So, correct answer is option A. Correct answer is option A. Okay. See the next question. The virtual image larger than a real image. कौन से मिरर में होता है बच्चों? सी, कॉन्वेक्स मिरर. इन कॉन्वेक्स मिरर for a real object, image is always virtual and smaller in size. So this is not the answer. Clear? This is not the answer. In plane mirror, object and image are of same size. So this is also not the answer. In concave mirror, virtual image is always magnified. Okay. So virtual image is larger than real object. It is in concave mirror. So correct answer is B. Correct answer is B. Then next question. An object is placed at a distance of 15 centimeter from concave mirror. See, concave mirror, object is kept at a distance of 15 centimeter. Okay. Object is kept at a distance of 15 centimeter. Object is kept at a distance of 15 centimeter. So what is object distance? By considering sign convention. If you measure in the direction of incident ray, distances are measured from pole. If you measure in the direction of incident ray, distances are taken positive, and if you measure in opposite direction, it is taken negative. So object distance क्या होगा बच्चों? -15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर का फोकस कहाँ होता है? क्लियर? ऑन लेफ्ट साइड. तो फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर. -10 सेंटीमीटर. क्या फाइंड करना है? वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड? इफ कंसेप्ट्स आर क्लियर, then you know that if object is kept between focus and center of curvature, image will always formed beyond center of curvature, beyond C. तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? ऑन लेफ्ट साइड. तो जो राइट वाले आंसर है ऑन दिस साइड, ये तो बनने वाला नहीं है. क्लियर और नॉट? ये तो बनने वाला नहीं है. अगर ऑब्जेक्ट आपने 15 सेंटीमीटर पे रखा है, क्लियर? फोकल लेंथ कितना है? 10 है. तो इमेज सी से बियॉन्ड ही बनने वाला है. क्लियर? तो 1/f इज 1/u प्लस 1/v. फोकल लेंथ कितना है? -10. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -15. इमेज डिस्टेंस की तलाश है. तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा बच्चा? 1/15 इधर लेके आओ, -1/10. कितना बन जाएगा बताइए? बोलिए. 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 2/30 माइनस 3/30. 2/30 माइनस 3/30 क्या बनेगा? -1/30. तो v क्या बनेगा? -30 सेंटीमीटर. सो टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द मिरर क्या आएगा? 30 सेंटीमीटर इज द आंसर. 30 सेंटीमीटर इज द आंसर. सो आंसर इज ऑप्शन सी. ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, see, object is placed at a distance of 12 centimeter from convex lens. See, this is convex lens. Clear? This is convex lens. Object is placed at 12 centimeter from convex lens. This is the object distance, which is again, this is the direction of incident ray. So we measure in this direction. So object distance कैसा लेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे? -12 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे? -12 सेंटीमीटर. क्लियर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -12 सेंटीमीटर.
Object distance is minus 12 centimeter. Now, object distance is minus 12 centimeter. ठीक है. Now, its image is formed on other side. Other side मतलब image distance is positive. It is plus 18 centimeter. Find focal length of the lens. क्या है फोकल लेंथ की फॉर्मूला? लेंस के लिए याद रखना 1/v minus 1/u. 1/f is 1/v minus 1/u. फोकल लेंथ कितना है बच्चा? That we have to find. इमेज डिस्टेंस कितना है? 18. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? minus 12. क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस. तो 1/f is 1/18 plus 1/12. If you find LCM it is 36. 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा बच्चा? देखो 1/f is 2/36 plus 3/36. ओके, सो 5/36. तो 1/f is 5/36. 36/5. क्लियर? कैसे सॉल्व करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 72/10. क्या आ जाएगा? 7.2 सेंटीमीटर. सो इज दैट available? Yes, it is the focal length. Option is B, correct answer. Then next, see, refractive index of diamond is to calculate the speed of light in diamond. So refractive index is C by V. Absolute refractive index की formula है. तो V क्या होगा बच्चों? C by refractive index. What is C? Speed of light in vacuum, that you must know. 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2. तो आंसर क्या आएगा? 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड. क्लियर और नॉट? तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ऑप्शन बी. बी इज द करेक्ट आंसर. तो आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, सो ये टोटल क्वेश्चन थे आपके. एक और रह गया. Angle between incident ray and reflected ray is 70 degree. What is the angle of incidence? What is the angle of incidence? तो देखो बच्चों, this is the reflecting surface. This is the reflecting surface. This is incident ray. This is the normal drawn at point of incidence. This is the reflected ray. This is the reflected ray. This is the angle of incidence. And this is the angle of reflection. Okay? क्या है रूल? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं. अब आपको क्या दिया है कि ये I प्लस आर की वैल्यू ही 70 डिग्री है. व्हाट इज गिवन? एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, इट इज 70 डिग्री. इट इज 70 डिग्री. तो I प्लस आर इज 70 डिग्री. लेकिन ये दोनों इक्वल होते हैं, तो आर की जगह हम क्या डाल देंगे? बोलो, I डाल देंगे. I की जगह, आर की जगह क्या डाल देंगे? I. क्या बन गया? बोलो, 2I इक्वल टू 70 डिग्री. सो I इक्वल टू 35 डिग्री. सो व्हाट इज द आंसर? D इज द आंसर. आंसर इज D फॉर दिस क्वेश्चन. ओके बच्चों, तो होप यू एंजॉयड दिस सॉल्यूशन. हैव अ गुड डे. हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों का समर्थ एग्ज़ाम हुआ. उम्मीद करता हूँ सबका बहुत बढ़िया गया हो, सबने बहुत बढ़िया एग्जाम दिया हो. चलो इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं. केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन जो था, क्या था? कंसीडर द रिएक्शन. रिएक्शन को कंसीडर करो कि जो क्या रिएक्शन है. हमारे पास रिएक्शन है अमोनिया ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहा है? NO विथ H2O. सबसे पहला काम क्या है? इस रिएक्शन को बैलेंस करें. बैलेंस करने में हमने क्या किया? अमोनिया इधर, नाइट्रोजन, तो मान लो 4 इधर, तो 4 इधर, 4 नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन 4, तो इधर 5, 5 2 10, 4 और ये 6. ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई. कितना? 4, 5, 4 और 6. इस रिएक्शन के हिसाब से A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 4 और D की वैल्यू 6. सबकी वैल्यू हमारे पास है. पहला ऑप्शन क्या है? AB का रेशियो क्या है? 4:5. ये कह रहा है 4:3. पहला गलत. दूसरा कह रहा है BC का रेशियो, वो क्या बता रहा है? 5/4 आना चाहिए. इसके हिसाब से 5/6. ये भी गलत. तीसरा इज C प्लस D, यानी 4 + 6 कितना हो गया? 10. 4 + 6 10. और दूसरा क्या है? A प्लस B, यानी 4 + 5 यानी 9. इन दोनों का समेशन 9 आ रहा है, इन दोनों का समेशन हमारे पास 10 आ रहा है. यानी
क्या होगा, C प्लस डी इज मोर देन A प्लस बी, यानी C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग पीएच। पीएच के हिसाब से इनमें से कौन बिल्कुल सही हमने अरेंज किया है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो लेमन जूस, लेमन जूस एक तरीके से हमारा एस्कॉर्बिक एसिड या सिट्रिक एसिड है, यानी वीक एसिड है। दूसरा गास्ट्रिक एसिड, गास्ट्रिक जूस का मतलब हमारे पास क्या हो गया, गास्ट्रिक जूस क्या होता है, HCl है ना, जो पेट में होता है, डाइजेशन में काम आता है, वो क्या है, HCl। पहला क्या है, लेमन जूस, यानी एक वीक एसिड। दूसरा हमारा क्या है, HCl। तीसरा प्योर वाटर, H2O। हमें पता है कि पीएच का रेशियो इनमें क्या होने वाला है, सबसे ज़्यादा पीएच वीक एसिड का होगा, है ना। उसके बाद हमारे पास उससे ज़्यादा पानी का होगा, पानी का 7 होता है, इसका लेस देन 7, और HCl का तो काफ़ी कम होगा बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना कम पीएच होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन होना चाहिए, पानी, वीक एसिड और HCl, यानी पहला तो ऑप्शन गलत है। दूसरा है प्योर वाटर यानी 7, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी ग्रेटर देन 7, और एक HCl लेस देन 7, ये ऑर्डर भी गलत है, क्योंकि हमें किस ऑर्डर में लगाना है कि कम से ज़्यादा के तरफ। तो सबसे ज़्यादा अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया गास्ट्रिक जूस, ये भी गलत है। अगर लास्ट वाला देखें गास्ट्रिक जूस लेस देन 7, प्योर वाटर 7, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी ग्रेटर देन 7। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम का बेसिक कंपाउंड, यानी जिसका पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज इनमें से एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर दूं आपको दिखे साफ। इनमें से आयरन को CuSO4 में मिलाया, आयरन यानी हमारा Fe, और CuSO4 में इनको मिलाया, तो हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, CuSO4 विथ कॉपर, CuSO4 विथ कॉपर। कॉपर सल्फेट जो है वो एक ग्रीनिश कलर का कंपाउंड होता है, कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है ना, ये तो हम जानते ही हैं। तो हमारा पहला क्या है, कॉपर डिस्प्लेसेस मेटल, बिल्कुल सही बात है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा है, कॉपर ब्लू कलर टर्न्स इनटू ग्रीन, यानी ब्लू कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सही है। दूसरा क्या कह रहा है, कॉपर मेटल जो है, कौन, कॉपर मेटल डिपॉजिट होना आयरन नेल, यानी अगर हम एक कॉपर सॉल्यूशन के अंदर लोहे की नेल को मिला देते हैं तो होगा क्या, इन जो ब्लू कलर है वो क्या होगा, इसके सरफेस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा, वो इसके सरफेस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि थर्ड इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट, यानी ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, सारे के सारे इसमें क्या है, सही बात है। नेक्स्ट इज ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि अगर A को BC के साथ रिएक्ट कराएं तो A क्या करेगा, B को भगा देगा और AC बन जाएगा और B अलग हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट पहला अगर मैं बात करूं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, ये किसका है, डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, इसमें टूट रहा है ना। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड एंड HCl, CaCl2 और वाटर, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट है, हाइड्रोजन जो है डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे। Fe विथ CuSO4 इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि Fe जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ कर रहा है रिएक्ट, और कॉपर को हटा के खुद इसके जगह जुड़ गया, यानी ग्रीनिश सॉल्यूशन हमारा बन गया, यानी थर्ड इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, तीसरी बिल्कुल सही बात है। चौथा क्या है, NaOH विथ HCl, यानी हमारा ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप इसको न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रिसाइजली आप इसको बोलते हो न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या हो रहा है, एसिड बेस मिलके न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर विल बी सी, है ना।
यहाँ पे जो ये नंबरिंग लिखी है ना बेटा 42/22, इसका मतलब सेट ए के हिसाब से आपका नंबर है 42 और सेट बी के हिसाब से आपका नंबरिंग है 22. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बात सही है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. क्या कह रहा है, MnO2, HCl, MnCl2, H2O और Cl2, ये सारी चीजें इसमें बन रही हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है HCl ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है Cl2 में. HCl किस में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, Cl2 में. अगर आप देखो HCl वो Cl2, हमें पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर मैं इसमें देखूं तो क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यानी इट इज अ ऑक्सीडेशन. तो हाँ, HCl ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो अगर HCl ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये खुद क्या है, ये एक रिडक्टेंट है यानी रिड्यूसिंग एजेंट है. इट इज अ रिडक्टेंट, है ना. ये क्या है, एक रिडक्टेंट, यानी रिडक्टेंट का ये नाम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये क्या है आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. नेक्स्ट इज MnO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnCl2 में. क्या यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन निकल गए. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. तो क्या इसमें रिडक्शन हो रहा है, ये बोल रहा है बिल्कुल, MnO2 इज रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. और जो रिड्यूस्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट है. तो ये दोनों गलत, ये दोनों सही, यानी हमारा आंसर हो गया फर्स्ट एंड थर्ड. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से नॉट कंटेन अ, एक सेकेंड, नेक्स्ट है इनमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में नहीं है, डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो अगर पहला हम बोले ब्लू विट्रॉल यानी कॉपर सल्फेट, CuSO4 का ही दूसरा नाम क्या होता है, ब्लू विट्रॉल. बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, NaHSO3. नेक्स्ट इज योर वॉशिंग सोडा क्या होता है आपका, Na2CO3.10H2O. ब्लू विट्रॉल 5H2O. जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट.2H2O. यानी का मतलब सब में आपका .H2O देखने को मिल रहा है, सिवाय किसमें, बेकिंग सोडा में. यानी किसमें .H2O नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, किसमें नहीं है, बेकिंग सोडा में. बी इज द करेक्ट आंसर. केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन. वो कह रहा है कि अगर हम किसको, P को कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट कराएं, P को यानी फॉस्फोरस को कॉस्टिक सोडा यानी NaOH, कॉस्टिक यानी थोड़ा स्ट्रॉन्ग, सोडा यानी सोडियम का कंपाउंड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, क्या बन गया, PH3 विथ H2PO2 माइनस, यानी कहने का मतलब NaH2PO2 माइनस. इसमें क्या हो रहा है, आप देखो, क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं. क्या इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं. क्या ये न्यूट्रलाइजेशन है, ये बेस है. क्या ये एसिड है, बिल्कुल नहीं. तो ये क्या है, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है. इसमें क्या है, आपको देखो डायरेक्टली हो सकता है कि आपने ये बात ना पढ़ी हो या आपको ना आइडिया हो, बट इतना है कि ऑप्शन रिजेक्शन से आप इसमें आंसर पहुंच सकते हो कि भाई ये 3 तो इसके कंफर्म ही नहीं है, ये 3 तो इसके कंफर्म ही नहीं है. तो ऐसे में क्या हो जाएगा, सी. ऐसा जेई वाले, नीट वाले बहुत करते हैं. जेई नीट वाले ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है, 3 स्टेटमेंट गलत दे देंगे जो आपने पढ़ी है, और चौथी स्टेटमेंट ऐसा कुछ दे देंगे कि आपको आइडिया भी नहीं है. तो आप बहुत इजीली, रिजेक्शन ऑप्शन कहते हैं इसको, रिजेक्शन टेक्निक, कि आप 3 को रिजेक्ट करो और फाइनली आपके आंसर तक पहुंच पाओ. तो यहां से आपका आंसर हो गया सी. तो केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए थे. ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटल एबिलिटी. मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं. मेंटल एबिलिटी में
पहला क्वेश्चन क्या है, मेंटल एबिलिटी में पहला क्वेश्चन क्या है कि संजय जो है, एक सेकेंड जी, पहला क्वेश्चन क्या है, संजय जो है वो 70 मीटर, मैं यहां पे करता हूं, देखिए 70 मीटर वो आगे की तरफ गया, 70 मीटर गया ईस्ट में, है ना, ये हमारा डायरेक्शन अगर देखें तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो वो कह रहा है मान लो वो यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से कहाँ गया, वो ईस्ट की तरफ 70 मीटर गया, उसके बाद उसने राइट लिया, राइट लेके कितना चला 10 मीटर, उसके बाद फिर राइट गया, है ना, अगेन राइट लिखा है, और फिर 10 मीटर वो गया, उसके बाद ही वेंट्स 90 मीटर टू द नॉर्थ, यानी जब यहां पे आया उसके बाद वो 90 मीटर नॉर्थ में गया, यानी नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन है आपका, ऊपर, तो ये नॉर्थ की तरफ 90 मीटर आपके गए। तो हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये जो डिस्टेंस है 10 10, ये भी 10 ही होगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल कह रहे हैं 90, तो ये अगर 10 है तो ये हो गया 80, और अगर ये 10 है, टोटल 70 है, तो ये कितना हो गया आपका 60, ये 80 और 60 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 80 एंड 60। तो हम इसको एक राइट ट्राइंगल माने, ये 80 है, ये 60, तो ये एंगल क्या होगा, दिस विल बी द, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, यानी हमारा ये हो जाएगा अपना 360 प्लस 640, यानी ये आ गया आपका 3600 प्लस 6400, ऑलमोस्ट रूट ऑफ 10,000, यानी अपना आ जाएगा ये 100 ऑप्शन है बिल्कुल, बी इज द 100 मीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमने टेम्पल का कोड लिखा, क्या लिखा है, VHQNIA, यही लिखा है, देखो ये कैसे लिखा होगा, इस पे आप ध्यान दो, ये कैसे लिखा होगा, देखो V अगर हम PQRSTUVWXYZ, अगर हम एक ABCD लिखें ए से, तो हमें पता है कि T के बाद V में कितना गैप है, T और V में कितना गैप है, एक U का गैप है, यानी एक अल्फाबेट का गैप है। अगर E का अगर हम बात करें, EFGH, तो E और H में कितने अल्फाबेट का गैप है, 2 का +2। अगर मैं M और N में गैप देखूं, M और N में गैप कितने का है, ये 3 अल्फाबेट का गैप है। अगर N और P में देखें, N यानी हम यहीं पे देखें MNOP, यानी किस में, P में और N में, P और N में कितने का गैप है, अब ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है और -1 का गैप है, तो ये -1 का गैप होगा। IJKL यानी 2 का गैप है, ABCDE यानी 3 का गैप है, यानी पहले 3 अल्फाबेट में 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, अगले 3 में -1 -2 और -3, यानी अगर हम यहाँ देखें CHURCH, तो अगर हम पहला बात करें C, तो C के बाद हमारा क्या आएगा, CD और E, H के बाद HIJ, तो ये K, UVWX तो Y, पहले 3 तो यही मिल गए, EKY, P इसके बाद QR, इधर हमारा क्या हो जाएगा Z, -2 उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो ZAB फिर C, और इधर अगर हम आए तो ये हमारा DEFG और H, यानी ये आपका कोड हो गया। पहले 3 में +1 +2 +3, अगले 3 में -1 -2 और -3, तो हमारे पास ये आ जाएगा EKY तो इन दोनों में, चारों में ही है, PZD, दैट इज C विल बी द आंसर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज
ये क्यूब का आपको क्वेश्चन दिया था कि ये क्यूब है, इसमें 3 के अपोजिट आपको कौन से नंबर देखने को मिलेंगे, 3 के अपोजिट कौन से, है ना, अपोजिट 3 के अपोजिट कौन सा मिलेगा। अगर मैं इधर देखूँ 3, पहला डायग्राम, तो 3 के पास कौन दिख रहा है, 1 और 6, 3 के एडजेसेंट यानी अगल बगल में। एक जो डाइस होती है वो डाइस में नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 to 6, 1 से 6 तक होते हैं। तो अगर 3 के अगल बगल में देखूं तो इसके पहला फिगर देख के पता चल रहा है 1 6 है। तीसरी फिगर अगर देखूं तो कौन सा है, 1 और 5, और चौथी फिगर देखूं तो 3 के बगल में 2 और 6, यानी 3 के अगल बगल में कौन कौन से नंबर है, 1 2 5 और 6। तो ये देख के हमें समझ में आता है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर रहेगा, इट मस्ट बी 4, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next is how many times the hands of a clock at a right angle in a day। यानी अगर एक घड़ी हमारे पास है, एक घड़ी हमारे पास है, एक घड़ी हमारे पास है, तो उस घड़ी में कितनी बार 90 डिग्री के एंगल बनते हैं एक पूरे 1 डे यानी 24 आवर्स में। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ पे ये 12, 1 ऐसे करते हो, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 9 और यहाँ पे 6। मान लो हम 12 बजे से स्टार्ट करते हैं, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसी तरीके से 12 से 1 मतलब 12 बजे से 1 बजे के बीच में। तो 12 बजे से मान लो हमने स्टार्ट किया, तो पहला हमें कितने बजे मिला, 12 और 3 का यानी 1, प्लस ऐसे ही ये घड़ी जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ये घड़ी थोड़ी सी आगे जाती जाएगी, जैसे जैसे ये तकरीबन यहाँ 10 के आसपास आएगा तब तक ये इस तरीके से यहाँ पे पहुँच चुकी होगी। तो ये जो एंगल बनेगा, यानी अब वो 12 पे थोड़ी रहेगी, जब ये तकरीबन वापस 12 पे आने वाला होगा, मिनट का जो सुई है, तो ये जैसे ही थोड़ा आगे होगा यानी तकरीबन 12:50 पे ये फिर से 90 डिग्री बना लेगा। यानी हर 1 घंटे में आपके 2 बार 90 डिग्री के एंगल बनने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जब आप 2 to 3 आवर्स का देखते हो, यानी अगर जब आप 2 to 3 आवर्स का अगर आप देखते हो, तो जब आप 2 और 3 यानी आपने 2 बजे से जब स्टार्ट किया, तो तकरीबन यहाँ पे पहला 90 डिग्री बना। जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगा 3 बजे पे, तो अगला ये कहाँ पे पहुंचना चाहिए, इधर, तभी 90 होगा। लेकिन जैसे ये यहाँ पे आएगा, उस टाइम पे अब 3 बज चुके हैं, यानी वो हम इस कैटेगरी में कंसीडर करने वाले हैं। यानी 2 से 3 में सिर्फ एक बार ही 90 डिग्री एंगल बनता है। ऐसे 2 के बिल्कुल सामने अगर आप देखो तो 7 है, 3 के सामने हमारे पास क्या है, ये अपना 9 है, तो ये 1 2 3, ये अपना 6, तो ये हमारे पास इस तरीके से है। तो एक ये 2 3 में ये प्रॉब्लम होती है, और एक यहाँ पे 8 और 9 में ये प्रॉब्लम होती है। 8 9 में भी हम ये करेंगे तब भी एक ही बार बनेगा, यानी हर घंटे में 2 बार, यानी 12 घंटे में कितनी बार हुआ, 24 टाइम्स। लेकिन 2 बार एक ऐसा होगा जब सिर्फ एक एक बार ही कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, यानी 22 इन 12 आवर्स, 12 घंटे में 22 बार, यानी 24 घंटे में 44 टाइम्स ये होगा, 44 टाइम्स ये आपका बनेगा। लास्ट क्वेश्चन इज कि एक आदमी है, नमन जो है, ये थोड़ा से लिख के करो तो ज़्यादा बढ़िया समझ आता है। वो एक आदमी को कह रहा है कि हिज सन, इस आदमी का जो सन है वो नमन का क्या लगा। चलो यही तो हमें देखना ये दोनों में क्या रिलेशन है। तो जो इस आदमी का बेटा है, इज माई सन्स अंकल, यानी इसका जो बेटा है उसका ये कौन हुआ, अंकल। इसका बेटा इनके बेटे का अंकल हुआ। अंकल का मतलब क्या होता है भाई, चाचा भी हो सकता है या मामा, चाचा या मामा दोनों हो सकते हैं। यानी कि ये इस नमन के बेटे का ये आदमी कौन है, चाचा या मामा। यानी नमन के लिए ये कौन हो गया, नमन के लिए ये कौन हो गया भाई, इसका अगर ये चाचा मामा है तो नमन के लिए ये कौन हो गया, आइदर तो ये इसका हो गया भाई, ब्रदर,
या ब्रदर इन लॉ यानी साला, भाई हुआ या साला हुआ। तो अगर ये भाई या साला है तो ये जो आदमी है वो इनके फादर, तो भाई हुआ तो फादर और साला हुआ तो फादर इन लॉ। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास क्या है, फादर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको ये बढ़िया समझ में आया। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है, कुछ है, तो वो आप मुझसे आके मिल लेना और डाउट आपके क्लियर कर लेना। थैंक यू।